Good morning students. Today we will discuss about the imperative types of sentence of the narration. If there is a imperative sentence in direct narration, then how to change an imperative sentence into indirect narration. Okay, let's discuss. As I told you in a previous videos, if that is assertive sentence, in assertive sentence when we are moving comma and double inverted comma and double inverted comma 6699, at the time in form of conjunction we are using that, and if that is interrogative sentence, at that time when we are moving comma and double inverted comma, we have to use if or whether. If that is the single interrogative sentence, if that is double interrogative sentence, that WH word will works in form of conjunction. Now we are going to study imperative types of sentence. If that is imperative types of sentence, in imperative sentence, when we remove comma and double inverted comma, at that time we have to use the conjunction to. It means that will be the sentence 2 plus V1. Firstly, what is the important things? We have to understand that which kinds of sentence are imperative sentence. A imperative sentence is that which always starts with a verb. Okay? What is imperative sentence? Imperative sentence is that which starts with a verb. इसकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से ही होती है. देयर इज नो सब्जेक्ट इन imperative sentence. ओके, तो लेट्स स्टडी फ्यू एग्जांपल्स. एज फॉर एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा give me water, at last there is a full stop and a inverted comma close. As I told you, what is imperative sentence? An imperative sentence is that which always starts with a verb. So here is a verb, there is no subject, and next, what is next things? When that was assertive sentence, in assertive sentence we were changing the said to into told. In imperative sentence we are changing said or said to into asked or inquired. But in imperative sentence we have to change said or said to into according to the sense of the reported speech. आपको बताया था ना कि this one is a reporting verb and this one is a reported speech. Okay, तो अब देखो, according to the reported speech meaning, यहां पर क्या बोल रहा है? give me water, पानी दो. it means it is expressing the order. तो whatever the sense presented by the reported speech, at once we change into said or said to into what's ordered or requested or advised or commanded. Okay, according to the sense of the reported speech. Okay, let's change it into passive indirect narration. So we have to find out the what is the meanings of here reported speech. Give me water, it means it is expressing the order.
if it is expressing the order, it means said will be changed into ordered. He ordered. Now we have to remove the comma and double inverted comma, and in form of the conjunction we have to use the to. हमको क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन क्या यूज करना है, टू. तो हमने यहां पर क्या यूज किया, टू. अब यानी कि हमको क्या करना है, ये स्टार्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है गिव से, तो हम क्या करेंगे, 2 + V1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. हमेशा ये ध्यान रखना है इन इंपरेटिव सेंटेंस. तो ही ऑर्डर्ड टू गिव. अब यहां पर देखो, मी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सन/123, ये हमारा फार्मूला है. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सन/123, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. तो व्हाट इज मी? मी इज अ फर्स्ट पर्सन. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ही. और दूसरी चीज हमको ये देखना है, पहले तो हमको ये देखना है कि कौन सा पर्सन है, तो हमको पर्सन तो क्लियर हो गया. आफ्टर दैट वी हैड टू चेक दैट इट इज इन अ सब्जेक्टिव फॉर्म or objective form or the possessive form. तो here me is objective form. तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिस फॉर्म में ये रहेगा उसी फॉर्म में इसको भी चेंज करना होगा. तो यहां पर ये कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म. तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम. हिम वाटर. ओके, एट लास्ट देयर इज अ फुल स्टॉप, देयर इज अ नो डबल इन्वर्टेड कॉमा. Okay, let's solve the next example. Example number 2. The teacher said, now, comma, you have to, sorry, now do your work, children. At last there is a full stop and inverted comma close. The teacher said, now do your work, children. तो देखो यहां पर ये एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ है, देयर इज नो मीन्स ऑफ इट. यहां पर ये सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे ही आ गया है. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस, यहां पर डू योर वर्क इट मीन्स द टीचर इज एक्सप्रेसिंग द ऑर्डर. ऑर्डर दे रहा है स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को. तो यहां क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन और द टीचर. सेट को बदल देना है किसमें, ऑर्डर्ड. द टीचर ऑर्डर्ड. यहां पर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे, कंजक्शन क्या यूज करोगे, टू. टू के बाद हमने क्या बोला, 2 + V1 करना है. V1 क्या है, डू. टू डू योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन. एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. हियर इज नो ऑब्जेक्ट. जब हमने बोला कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो यहां पर जिसका कोई नहीं उसका कौन. हम देखो दूसरी चीज, आपको अभी तो आप 10th में हो, इन सपोज दैट आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सपोज किया जाता है. क्या क्या सपोज करना होता है, आज मैं आपको बता देता हूं. जब रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में देयर इज अ गिवन आई इन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, तो आई के साथ कभी मी माना नहीं जाएगा. आई के साथ कभी मी सपोज नहीं किया जाएगा. वी के साथ कभी असपोज नहीं किया जाएगा. यू के साथ कभी यू सपोज नहीं किया जाएगा. बाकी आप थर्ड पर्सन में से कोई भी सपोज कर सकते हैं. अब कभी ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने मुझसे कहा, या हमने हमसे कहा, या तुमने तुमसे कहा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, ही सेड टू हिम हो सकता है. वाई, उन्होंने उनसे कहा. इट मीन्स देयर आर टू पर्सन. अब मैंने, आई सेड टू मी, इसका मतलब मैंने मुझसे कहा. तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ना, मैं ही दोनों. तो वहां पर क्या करना है, जब आई इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मी नहीं सपोज करना है, वी के साथ अस नहीं सपोज करना है, यू के साथ यू नहीं सपोज करना है. इट मीन्स हियर द टीचर सेड, तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो. इफ देयर इज अ थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो यहां पर मान लीजिए आपने सपोज किया, और सपोज करने वाली चीज लिखते नहीं है, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स। मैथ में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं तो उस चीज को लिखना पड़ता है, लेकिन हमारे इसमें सपोज तो करते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने बोला सिट डाउन, तो इट मीन्स हियर इज अ अंडरस्टूड व्हाट यू इज अ अंडरस्टूड। कौन सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो यू क्या है इधर, अंडरस्टूड है। तो हम यू को कभी एक्सप्रेस करते हैं, नहीं करते। जब नहीं करते तो यहां भी करेंगे नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड टू डू अकॉर्डिंग टू दिस। के आपको यहां पर मानना नहीं है ना तो लिखना है, क्लियर। अब आप योर को चेंज कर दोगे, यहां पर आपने सपोज कर लिया कि हमने क्या माना, हिम। द टीचर सेड, ये देखो योर थर्ड पर्सन मान लो, देम मान लो, तो यहां क्या हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है देम, योर पॉसेसिव फॉर्म, देम का पॉसेसिव फॉर्म क्या, देयर, क्या हो जाएगा, टू दियर वर्क। यहां पर हाँ देखो चिल्ड्रन दिया है, ये चिल्ड्रन ही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड किसको, चिल्ड्रन, इस तरीके से होगा, द टीचर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन टू डू दियर वर्क, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल क्या, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, जिस पर मैंने आपको बताया था अगर ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल में करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या माना, देम, तो योर पॉसेसिव फॉर्म, इसलिए देम का पॉसेसिव फॉर्म क्या, दियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, द बॉय सॉरी द बेगर said to the boy, give me something to eat baba, give me something to eat। at last there is a full stop and inverted comma close। आप यूज कर सकते हो कॉमा लगा के क्या, बाबा। ओके तो आप देखो बेगर क्या करता है, उसका काम बेग है। अब ऐसा तो नहीं कि आजकल के समय की तरह आप एकदम उठ से मांगोगे, बराबर, तो आपको मांगना कैसे होगा, रिक्वेस्ट ही करोगे ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, जहां पर ये वर्ड्स आ जाए ये आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर सकते हो। यहां पर बेगर वर्ड दिया तो बेगर क्या करेगा, बेग करेगा, बेग यानी कि रिक्वेस्ट करेगा। तो आप चाहे सेड टू की जगह बेग्ड यूज कर दो या रिक्वेस्टेड यूज कर दो, तो दैट्स डिपेंड ऑन यू। क्या हो जाएगा, द बेगर बेग्ड और क्या, रिक्वेस्टेड, किससे, बॉय। अब हमने कहा 2 + V1 करना है, टू गिव मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, बेगर, बेगर के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे क्या, ही। तो यहां पर जिस फॉर्म में ये उसी फॉर्म में ये, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। गिव हिम समथिंग का समथिंग, समथिंग समथिंग टू ईट, एट लास्ट देयर इज अ फुल स्टॉप, यू हैवंट यूज द बाबा। ओके, तो दीज आर द, अब देखो मान लो जी ऐसे, अब जैसे जज वर्ड आया है, अब जज क्या करता है, ऑर्डर देता है। आप सुनते हैं ना कोर्ट में, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओके, तो जज क्या करता है, ऑर्डर देता है। अब जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर, अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, आई एम गिविंग द पीस ऑफ एडवाइस। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है, जो भी सेंस आपको रिप्रेजेंट करेगा, उसी सेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज द सेड आर सेड टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल
PM said, comma, inverted comma, help the poor, at last full stop and inverted comma close. तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब ऐसा थोड़ी है कि मेरी मदद नहीं करने की इच्छा है, अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मदद करो, तो दैट्स डिपेंड ऑन अस, वी आर कंप्लीटली इन अ फॉर्म ऑफ लिबरेट, ये हमारा क्या है, तो हम क्या करेंगे यहां पर हो जाएगा PM एडवाइज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या आ जाएगा टू, PM advised to help the poor. It's a clear? Now these are the positive sentence. If that is the negative, ये इसमें जानना होता है, जरूरी होता है. इस तरीके से कमांड वर्ड कहां लगता है ये भी आप समझ लो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कमांड वर्ड कहां लगता है. एग्जाम्पल नंबर 4, this one example number 3, the captain said, comma inverted comma, shoot the enemy, shoot the enemy, at last full stop inverted comma close. तो the captain said, comma inverted comma, shoot the enemy. अब यहां पर देखो कैप्टन क्या करता है, जो ग्रुप का कैप्टन होता है कमांड करता है. इट मीन्स यहां पर हम वर्ड यूज क्या करेंगे, द कैप्टन कमांडेड, द कैप्टन कमांडेड, रिमूव द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यूज कंजक्शन टू शूट व्हाट्स द एनिमी, इट विल बी ओके. इफ दैट इज द नेगेटिव, सपोज दैट इफ दैट इज द नेगेटिव, Sheila said to me, okay, don't hate to anyone, किसी से घृणा मत करो, डोंट हेट टू एनीवन. अब देखो यहां पर क्या है, देयर इज अ गिवन द डोंट वर्ड, ओके. तो जब कभी भी इस तरीके का रहे, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ अ डोंट, हमेशा डोंट ही आएगा. एट दैट टाइम यू हैव टू चेंज द सेड टू इन फॉरबिड. दो चीजें होता है, जब यहां पर डोंट आए तो आपको क्या करना है, शीला, अब ये क्या हो जाएगा, यहां सेड टू की जगह ये सब वर्ड नहीं आएंगे. डोंट आया है ना, तो क्या आएगा, फॉरबिड. बेड मतलब कहना, फॉरबिड मतलब मना करना. अब यहां पर शीला फॉरबिड मी, क्या हो जाएगा, टू हेट टू एनीवन, इट्स अ क्लियर. एक तो ये तरीका हो गया कि सेड टू को किस में बदल दो, फॉरबिड में, तो हो गया शीला फॉरबिड मी टू हेट टू एनी वन. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, वो और करके आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको मान लो नॉट से जो है आपको बहुत लगाव है, आप ये चाहते हो कि नॉट हमसे दूर न जाए, तो जब आप लगाव है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. तो यू हैव टू फाइंड आउट द सेंस. डोंट हेट टू एनीवन, इट मीन्स वो क्या कर रहा है कि आपको एडवाइस दे रही है शीला, किसी से नफरत मत करो. शी इज गिविंग द पीस ऑफ एडवाइस. तो जब आपको एडवाइस दे रही है तो आप क्या करोगे, यहां पर शीला, फिर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी, फिर क्या करना है, अभी तक आप टू यूज करते थे ना कंजक्शन, अब आपको टू नहीं यूज करना है, नॉट फिर टू, क्योंकि ये फेविकोल का जोड़ा है, टूटने वाला नहीं. ठीक, जय वीरू की दोस्ती है, 2+V1 आना चाहिए फॉर्म, ये आपको ब्रेक नहीं करना है. अंडरस्टैंड. जब आपको ब्रेक नहीं करोगे तो यहां पर नॉट तो यूज करना है ना, तो आप क्या करोगे, शीला एडवाइज्ड मी नॉट टू, क्या, नॉट टू हेट टू एनी
1, दिस वन विल बी, इट्स अ क्लियर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ अ लेट, ओके, राम said, comma, inverted comma, let me do this work. Okay, this one is also imperative types of sentence. It's a clear? Ram said, let me do this work. तो as I told you, अगर let आता है तो let को too late में बदल देते हैं, always mind it. किसमें? too late में, ना कि toilet में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? We have to also find out the meanings or the sense. Let me do this work, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस काम को करने दो। सपोज दैट समवन इज डिस्टर्बिंग टू राम, तो वो तो ऑर्डर तो देगा नहीं, तो वहां से क्या करेगा? अगर कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट ही करेगा ना। तो यहां पर लेट मी डू दिस वर्क, वैसे भी लेट कहीं आना है तो लेट का मतलब ही होता है दो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहां पर अब ऐसा थोड़ी बोल रहा हो कि ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई तुम मुझे जाने दो। जब ऑर्डर देने का मतलब ये कि मैं फ्री हूं ना, तो लेट से मतलब ये होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि जब इस तरीके का सेंटेंस आए, लेट वाले आए, तो आपको क्या करना है? राम रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा? लेट को टू लेट में बदलना है, यानी टू लेट। राम रिक्वेस्टेड टू लेट, यहां पर अब आया क्या? मी। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के लिए प्रोनाउन यूज क्या करेंगे? ही। मी कौन सा फॉर्म? सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, डू का डू, दिस। मैंने आपको बोला था कि नजदीक को किस में? दूर में बदलना है, बराबर? तो दिस मतलब नजदीक, दिस का अपोजिट दैट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेट हिम डू दिस का क्या? दैट वर्क। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। सी रिक्वेस्टेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, let me solve my puzzle, let me solve my puzzle. इट्स क्लियर? तो अब देखिए यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी यहां पर रिक्वेस्टेड वर्ड दिया है, तो जब रिक्वेस्टेड दिया है तो यू हैवंट चेंज इट, तो यहां क्या हो जाएगा? सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड टू लेट मी का क्या? हिम, सॉरी हिम नहीं, यहां पर हर हो जाएगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कौन? सी। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या? हर। लेट टू लेट हर सॉल्व, फिर वंस अगेन हर पजल। इट्स अ क्लियर? सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर सॉल्व टू हर पजल। अंडरस्टैंड? बस एक ही चीज ध्यान देना है कि यहां पर आएगा लेट तो बदल देना है टू लेट में। क्लियर? हाँ, टू लेट में। नाउ एक बचा है इसमें लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको इजिली समझ लेते हैं कि हाउ टू चेंज इफ अ सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ लेट अस। अब यहां पर लेटस चेंज कैसे करेंगे? हाउ टू चेंज अ सेंटेंस? सपोज दैट, अब यहां पर ध्यान देना, व्हेन देयर इज अ गिवन लेट अस मीन्स व्हेन अ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट विथ अ लेट अस, तो अब आप क्या करोगे? आए हुए सेड या सेड टू को, और ये चीज सब करते हो, बोलते हो प्रपोज, बराबर? तो आप क्या करते हो? प्रपोज करते हो। तो यहां पर सेड या सेड टू को
कन्वर्ट कर दोगे किसमें, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ओके, लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। आई सेड टू हर, I said to her, comma inverted comma, let us go to watch the movie. Let us go to see, let us go to see or watch the movie. It's clear? चलो मूवी देखने चलते हैं। यहां लेट्स आता है। व्हाट इज मीन्स ऑफ द लेट्स? लेट्स मीन्स आओ चले, यूज करते हो ना, लेट्स गो टू ड्रिंक वाटर, लेट्स गो टू टेक लंच, ओके, लेट्स गो टू समथिंग समथिंग। तो यहां पर नथिंग नथिंग करना क्या है आपको, जब यहां पर सेड टू आएगा तो आपको क्या करना है, आई प्रपोज्ड, प्रपोज कर लेना है। मैंने उससे प्रपोज किया, मैंने उसको प्रपोज किया। अब यहां पर आए हुए, अभी तक आप क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन आप टू का यूज करते थे। जब देयर इज गिवन लेटस, लेटस दिया हो तो वहां पर कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। इट्स क्लियर? दैट। अब ये लेटस को असलेट में चेंज करेंगे, मीन्स इट विल बी इन गो इन प्लेस ऑफ अस एंड दिस वन इन प्लेस ऑफ लेट। तो क्या हो जाएगा, लेट अस, यानी कि लेट को यू हैव टू चेंज लेट इनटू शुड। लेट को किस में चेंज करना है, शुड में। और अस इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो अस का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, वी या दे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड हर दैट। अब यहां पर चाहे एज योर विश, वी लगाओ या दे। फिर लेट को चेंज किए किसमें, शुड में। तो वी या दे शुड गो टू वॉच व्हाट्स द मूवी। इट्स क्लियर? लेट्स गो टू वॉच द मूवी। नाउ फाइनल एग्जांपल, सेकंड। बंटी said to बबली, बंटी said to बबली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, देखते होंगे लिखा रहता है, लेट्स गो टू सी अथवा विजिट, लेट्स गो टू विजिट द जू। Okay, when we solve it, at that time there will be Bunty proposed किसको, बबली। यहां पर you have to remove the comma in inverted comma and you have to apply the that। अब after that मैंने बोला लेट को बाद में, अस को पहले, यानी कि इसको बदल देना है वी या दे में, और लेट को किस में, शुड में। ये कंपलसरी है। गो टू विजिट, गो टू विजिट व्हाट्स द जू। आइए चिड़ियाघर देखने चलते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं। आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ imperative sentence, how a imperative sentence direct narration will be changed into indirect narration. You completely understand this topic. If there is any doubts in your mind, you may comment in comment box. Thank you. That's all.